So I welcome you all to another session on econometrics. Today what we are going to do is chapter 4 of BN Gujarati and Kotak, and the PDF that I've sent you also has my class notes. So this is a comprehensive book, comprehensive PDF. However, there's one aspect that is missing from this reading, which is already covered in my class notes, is that you need to cover geography along with this. You see your syllabus. In your syllabus, then we are covering chapter number 4, but if you see you have another reading by Dougherty, it's given in your readings, so you need to cover that particular chapter as well. Okay, but I've already incorporated most of those things in your class notes. And in this, you have chapter number 5 and chapter number 6. Chapter number 5 is functional forms, and chapter number 6 is dummy variables. So these two aspects are still to be covered. And then you have the simple, you have each chapter on one chapter on multicollinearity, one chapter on heteroscedasticity, and one chapter on autocorrelation. ये सारे के सारे चैप्टर एक एक क्वेश्चन देते हैं हमेशा, ठीक है. एंड देन यू हैव स्पेसिफिकेशन एनालिसिस. स्पेसिफिकेशन एनालिसिस का यूजुअली जो क्वेश्चन होता है वो एक सब पार्ट के फॉर्म में होता है. So that again, it's a very small part. Again, there's just one small section to be done. So let's come to what we were discussing. So the agenda for today is this. Let's start our discussion. So we already have seen two variable regression. Now what we are going to do is we are going to extend the regression idea into multiple variable regression. Now what is multiple variable regression? अभी तक जो हमारा assumption था वो था कि there is one x2 which is affecting y, but apart in our case y क्या था? Y था your SAT score and x2 था your family income. But apart from family income, there are other variables which will also affect your SAT score. For example, how many hours did you study? What kind of coaching did you go to? What is your IQ in terms of mathematical aptitude? So इन सारी चीजों पे depend करेगा what your score is. And ये सारे के सारे आपस में भी interact करेंगे. So suppose that interaction form we will see later, but ideally ये आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक बंदा जो स्मार्ट भी है, जिसका आईक्यू भी हायर है और वो ज्यादा मेहनत भी करता है, तो उसका इंपैक्ट, इन दोनों का इंपैक्ट भी ज्यादा होगा इसके ऊपर, SAT स्कोर के ऊपर. सो दोस आर इंटरेक्टिव वेरिएबल्स एज वेल. So what we are going to do right now is we are going to extend our analysis from two variable regression. The two variable, when we say two variable regression, एक intercept और एक explanatory variable to multiple variable, whereby we will have one intercept and multiple independent factors to explain it. So how do we estimate? What are we going to see? How do we estimate a multiple variable regression model as compared to two variable? Hypothesis testing में कोई फर्क है या नहीं है? We will see there is no difference, except for we will see जब हम overall model significance देखते हैं तब क्या होगा? We will come to that. Then what are the unique features of multiple regression? And how do we decide कि कितने variables और कौन-कौन से variable add करने हैं नहीं करने हैं? For example, अगर मुझे देखना है SAT स्कोर, तो SAT स्कोर को तो आप कह सकते हो कि मुझे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. मैं कह सकता हूं कि किसी का वेदर पे भी इम्पैक्ट हो सकता है, मूड पे भी इम्पैक्ट हो सकता है, क्या कहते हैं, इस चीज पे भी इम्पैक्ट हो सकता है कि सुबह किसी ने दही खाई या नहीं खाई. तो ऐसे तो फिर तो मैं कितने भी सारे वेरिएबल्स उठा के ऐड करना शुरू कर दूं. सो व्हाट वी नीड टू सी इज how many variables should we add and how do we decide that how many variables should we add? Because ultimately अगर हम n number of variables add करते रहेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा? What is the penalty factor? And there we will see there is a concept called adjusted R square. कि जब हम देखेंगे कि कब आप एक नया वेरिएबल ऐड कर सकते हो, और फिर हम रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड R स्क्वायर के बारे में भी बात करेंगे इसी रिस्पेक्ट में कि कब आपको ऐड करना चाहिए नया वेरिएबल और कब नहीं करना चाहिए. Extending our analysis into three variable regression. Now finding out the values of B1, B2 and B3. Now what is B1? B1 is going to estimate beta 1, B2 is going to estimate beta 2, and B3 is going to estimate beta 3. Now the entire derivation of this you can find it in my class notes. Just below this PDF you will find my class notes, and I've used matrix algebra to find out how you calculate each of them. Then moving ahead,
if you remember the two variable regression में क्या होता था, expected value of जो PRF फॉर्म होता था, expected value of y given xi is beta 1 plus beta 2 xi, ये हमारा PRF होता था। हमें ये नहीं पता, ये हमें ये नहीं पता, इसको एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास yi hat होता था, इसकी जगह पे हमारे पास b1 होता था और इसकी जगह पे b2 होता था। और जब स्टोकेस्टिक वर्जन के बारे में लिखते थे तो स्टोकेस्टिक वर्जन में ui ऐड कर देते थे। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम इसको t तक ले जाते हैं, तो हम इसको b1 इसी को yt, दिस जस्ट अ सब्सक्रिप्ट, ठीक है, yt बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 xt, इसको आप k तक ले जा सकते हो अगर आपके पास k एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है, और ये ut अगेन। So this is your explainable part and this is what you are not able to explain, stochastic point, ठीक है। Remember यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा b1, b2 और b3 के बीच में। ये जो है ये अब पार्शियल कोएफिशिएंट्स हैं, पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं। What does partial regression coefficient mean? That this is basically जब आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे, तो जब आप इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो, नॉट टोटल डिफरेंशिएशन, व्हेन आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x2, तब आपका ये b2 आता है। तो दैट दिस एसेंशियली मींस दैट यू आर कीपिंग ऑल अदर थिंग्स, आपने x3 को आपने कांस्टेंट मान के चला है, तब आप इसको इस तरीके से, दैट इज व्हाई दिस इज ऑन द बेसिस of partial differentiation, and that's why it's a partial regression coefficient, keeping all other explanatory variables as constant. To explain you in terms of a Venn diagram, तो आपके पास y है और y को एक्सप्लेन करने के लिए एक वेरिएबल है xi, एक वेरिएबल है x1 और एक वेरिएबल है x2, या इसको आप x3 लिख लो और इसको x2 लिख लो, क्योंकि हम x1 को मान के चलते हैं कि वो आपका क्या कहते हैं इंटरसेप्ट है। सो व्हाट एसेंशियली यू आर डूइंग इज, जब आप इसका पार्शियल रिग्रेशन निकालने की कोशिश करते हो, तो आप अल्टीमेटली ये वाला पोर्शन निकालने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ ये वाला, कीपिंग नेट इफेक्ट कि सिर्फ x2 जो है वो y को कितना इंपैक्ट कर रहा है। सिमिलरली जब आप क्या कहते हैं बीटा 3 के बारे में बात करते हो, तो ये आपका बीटा 2 का इंपैक्ट है, ये आपका बीटा 3 का इंपैक्ट आएगा, ये वाला पोर्शन, ये आपका बीटा 3 का इंपैक्ट आएगा। दिस इज अगेन पार्शियल गिवन अदर एज कांस्टेंट, और ये जो बीच में है ये दोनों मिलके जो इंटरेक्ट करके जो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं वो ये वाला पोर्शन है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है in our analysis which we will see later, कि हो सकता है आपका एक वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट आ रहा हो, ठीक है, या हो सकता है दोनों वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट आ रहा हो बट वो टुगेदर दोनों मिलके एक साथ एक्सप्लेन कर पा रहे हो, ठीक है, तो ओवरऑल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं उसे हम, ठीक है। तो हम उसके लिए एक और टेस्ट आई टेल यू, एफ टेस्ट, जो हम यूज करेंगे ओवरऑल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए कि ओवरऑल दोनों ये बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 जीरो तो नहीं है, और वो कितना एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। We'll come to that, but please remember this thing, that what does beta 2 here mean and what does beta 3 here mean. These are partial regression coefficients, net effect of x2 on y, net effect of x3 on y, keeping the other independent variables as constant. Now moving further, so this we have already covered basically what the meaning of what this means. हमने बात करी थी कि बेसिकली आपका एक xi पे जो आपके जितने भी yi's हैं उसका मीन जो है वो PRF है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप 3 वेरिएबल में चले गए, तो यहाँ पर जो 2 वेरिएबल में तो लाइन बन जाती थी, ठीक है, बट जब आप 3 वेरिएबल में चले जाओगे तो ये प्लेन बन जाएगा। सो यू हैव अ हाइट, यू हैव अगेन, तो आपके पास हाइट भी है, x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है और एक z एक्सिस भी है, तो ये प्लेन के फॉर्म में, इमेजिन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेन रादर देन जस्ट अ लाइन। एंड अगर आप मल्टीपल और ज्यादा वेरिएबल में चले जाओगे तो ये हाइपर प्लेन बन जाएगा, ठीक है। सो अगेन स्टोकेस्टिक वर्जन, और हमने बात कर ली कि ये रैंडम कंपोनेंट है और ये रैंडम कंपोनेंट है और ये डिटरमिनिस्टिक कंपोनेंट है, जैसे हमारा प्रीवियस केस था।
ठीक है. I've already explained you that B2 means the change in mean value of y per unit change in x holding the other thing as constant. तो ये आपका essentially it's a partial derivative, it's not a total derivative. Partial differentiation कर रहे हो आप इसमें, ठीक है. Then one thing that you अच्छा again so you want to have independent and independent effect of each y. See, this is what it says. But independent or isolate or entangle each of x variable on y from the other variables included in the model. That's why I'm saying that it's a partial derivative. Then what are the assumptions? सारी assumptions same है except for one major assumption. ये हमने linear के बारे में बात करी थी, uncorrelated के बारे में बात करी थी कि expected value of mu x, expected value of x2 mu is equal to 0, expected value of mu x3 is equal to 0, ठीक है. But apart from that हमने इसके बारे में भी ऑलरेडी assumption ली हुई है. होमोस्कैटास्टिसिटी के हमें assumption पता है, ऑटो कोरिलेशन के assumption पता है. This is a new assumption which is called as multicollinearity. Multicollinearity. Now what is this multicollinearity? ये बेसिकली बोल रहा है कि x और दो अगर वेरिएबल्स हैं तो उनके बीच में कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एग्जैक्ट रिलेशनशिप? कि एक x दूसरे x के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक x दूसरे x के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट हो गया तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे रिग्रेशन फंक्शन के अंदर. फॉर एग्जांपल लेट्स सी दिस. इस केस में क्या है, जैसे ये वाला है या ये वाला कोई भी assumption, जैसे ये वाला assumption ले लो तो x2 is 4 times x3. तो अगर आपने इस तरीके का रिलेशनशिप ले लिया और आपके पास रिग्रेशन लाइन ले दी तो आपने क्या किया, x2 की जगह पे ये 4x3 लिख दिया और ये आपने इसको एक्सपैंड करके इस फॉर्म में लिख दिया. इसको चाहे आप a के फॉर्म में लिख लो या अगेन आपने क्या किया, 3 वेरिएबल रिग्रेशन को आपने 2 वेरिएबल रिग्रेशन बोल दिया वेयर a is equal to 2b2 plus b3. बट जब आप इसको एस्टिमेट करोगे तो आप a गिवन दिस आपके पास a की तो वैल्यू आ जाएगी, बट एक सपोज इस स्लोप की वैल्यू आई 3 is equal to 4b2 plus b3. तो इसको आप इस केस के अंदर आप b2 और b3 को एक्सप्लिसिट वैल्यूज दे ही नहीं सकते हो. इंडिविजुअली यू कांट एस्टिमेट दिस, यू नीड टू इक्वेशंस टू सॉल्व टू वेरिएबल्स. सो दैट इज व्हाई देयर शुड नॉट बी perfect multicollinearity. So the word is perfect. Remember this term. Multicollinearity हमेशा आएगी, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ इंपैक्ट करेगा ही करेगा. ऑफ कोर्स जिसकी फैमिली इनकम ज्यादा है तो उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है तो उसके पास बुक्स भी ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है, तो वो बेटर कोचिंग में भी जा सकता है. तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कनेक्टेड होगा ही होगा, बट हमारा पॉइंट है कि ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए. देन वी विल सी कि इसको डिस्टेंगल कैसे किया जा सकता है. नॉट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, हम मल्टीकोलिनियरिटी की बात जरूर करेंगे इस कोर्स के अंदर, कॉल्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है. तो हम आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज से हम देख सकते हैं कि कैसे आप एक वेरिएबल बाकी सारे वेरिएबल्स का इंपैक्ट हटा के एक वेरिएबल का इंपैक्ट देख सकते हैं, ठीक है. नॉट गोइंग टू डिटेल, but just remember this term PCA, Principal Component Analysis, which you will learn in your masters. The problem is of high multicollinearity, ठीक है. अच्छा, अब इसी का हम स्टोकास्टिक, अगर हम इसका SRF फॉर्म में लिखेंगे तो SRF फॉर्म में हम इसको लोअर उसमें लिखते हैं. So this is the form of this. एंड जब आप इसको एस्टिमेट करोगे ये आपका स्टोकास्टिक फॉर्म है. नॉन स्टोकास्टिक फॉर्म सिमिलर फॉर्म में इस तरीके से आ जाएगा. अगेन when हम जैसे हम 2 वेरिएबल में करते थे वैसे ही 3 वेरिएबल में भी कर सकते हैं कि इसको हम एरर को एक साथ एक जगह ले गए और उसके बाद उसको मिनिमाइज स्क्वायर कर दिया. OLS का जो मेथड था, दिस इज बेसिकली जो आपने एस्टिमेट yt माइनस yt हैट, तो उसको आप उसका स्क्वायर कर दिया आपने. और when you will differentiate it with respect to b1, b2 and b3, so you will get these 3 equations. These are the 3 normal equations, ठीक है. And using these 3 solving these 3 normal equations, you will ultimately get these 3 b values, b1, b2 and b3. ये तो बिल्कुल बेसिक है कि your regression line must pass through y bar, x bar and x2 bar and x3 bar. ये तो सबसे बेसिक वो है.
Then apart from that, B2 and B3 की आपको ये values याद करनी पड़ेगी. It's very easy to remember because दोनों का if you see the denominator दोनों का same है, and in fact numerator भी बहुत related है एक दूसरे से. So if you see summation yi x2i and जो दूसरा है उसका x3i xt का square and then y xt जो ये वाला था उसी का आपने उसको आपने रिप्लेस कर दिया इससे and x2 x3. सिमिलरली ये सारा सेम यहाँ पर हो जाएगा एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट यहाँ पर x2 की जगह x3 आ जाएगा और ये x2 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा. सो इट्स इफ यू रिमेंबर वन ऑफ दीज तो the other one you can easily remember, but I want you to remember these because these are extremely important. You can't keep deriving them every time. So इसीलिए इसको याद करना ज्यादा इजी है. So as I told you in the initial classes कि आप एक पेज पे ये जो बेसिक जो formulas है इनको you can write it down and paste it somewhere so that you keep referring them again and again and you can remember these terms. Variance and standard errors. Again variance का आपको ये term you need to remember this term. ठीक है. Similarly variance again दोनों का similar है बहुत ज्यादा. ठीक है. And the only difference is कि denominator same है. Numerator में you will have x2 in case of b3 and x3 in case of b2. Please I request you to learn these two formulas, and this already you know that how do you estimate the variance of the population UP. इस केस में n-3 है because यहाँ पर अब आप तीन पैरामीटर्स एस्टिमेट कर रहे हो, beta1 beta2 and beta3. ठीक है, इसलिए this is n-3 and this is again standard error of the estimate या standard error of the regression. Properties सारी वही है, blue वाली properties हैं. ESS, RSS we have already discussed in the previous class. आप R square इसको आप capital R square के फॉर्म में लिख सकते हो. TSS is equal to ESS plus RSS and your R square is ESS plus plain sum of squares upon total sum of squares. This if you go to the appendix, let me show you the appendix. Hold on. I told you these are the three normal equations that you need to solve. Then apart from that, derivation of, please go through this equation. See, all it does is you have the stochastic version of yi, you have the deviation form of this. So all you did was इसको आपने summation किया and then divide by n किया, आपके पास deviation form आ गया. जब आपके पास deviation form stochastic form आ गया, so this is your ei square को आप कैसे लिख सकते हो? summation ei square को ei into ei, हमने एक ei को ओपन अप किया, yi is equal to b2 x2i b3 x3i and then what we did was इसको हमने मल्टीप्लाई करना शुरू किया and these two will become zero. Why will they become zero? Because of the fact that there is, if you see the assumption, there is no relationship between xi and error terms. The second assumption that is there. तो आपके पास बचा सिर्फ ei yi. अब आपने ei को वापस जो आपके पास ये वाला था इसको वापस इंसर्ट कर दिया and then yi से मल्टीप्लाई कर दिया. So all you get is summation yi square bracket this is what is left. So this is what is ESS and this is your TSS. So that is your RSS left hand side. So this is how we have done this proof. Our example here is there is the y is the auction price of a particular watch, antique watch. We are selling an antique watch, and what you want to know is what will be the price of that antique clock that you're selling. Now, given that it's an antique clock, the higher the age, or in the sense, the older the age, higher will be the price. That is how things work with antiques. The more antique is a particular commodity, the higher will be its asking price. So your one of the variables is age of the clock. The other variable is the number of bidders. If the number of bidders are extremely high, then again the price will increase because more number of people will be wanting that particular kind of watch. So this is an example that you see in if you heard of a place called Christie's. So again, this is a private organization which sells antiques, and then you have paintings. So all of that work is done by Christie's. So similar to that exercise that we are seeing here.
So the regression that we did was this. So remember this कि हमने रिग्रेशन किया, हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, हमारे पास ये इंटरसेप्ट आ गया, ये हमारे पास B2 का आ गया एंड ये हमारे पास B3 का आ गया. So what does this mean? That the price of if there is 1 unit increase or 1 year increase in the age of the clock, then उसका प्राइस जो है वो 12 यूनिट से बढ़ जाता है. एंड अगर एक बिडर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो उसका प्राइस जो है वो 85 यूनिट से बढ़ जाता है. Remember, that is why I'm saying that these are partial correlation, partial regression coefficients, और ये आपकी एवरेज प्राइस है. ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि एवरेज प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकती. ठीक है. एंड इफ यू सी द p values इफ यू चेक, देन p values जो है वो आपकी सिग्निफिकेंट, सारी की सारी सिग्निफिकेंट आ रही है. ठीक है. विल कम बैक, एंड आपका R स्क्वायर भी काफी हाई आया है. Now hypothesis testing we have already seen कैसे करोगे. इंडिविजुअल उसको B1 ये आपको सबको जीरो पुट करते रहो और उसके बाद देख लो कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है. चाहे आप उसको क्या कहते हैं, टेस्टिंग, आप जब इंडिविजुअल टेस्टिंग कर रहे हो तो चाहे आप उसको कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच से करो या आप उसको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच से करो, एक ही बात है. देयर इज नो डिफरेंस, और वो सारी कर रही है. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज this is what I'm more interested, क्योंकि वो सारा डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके. जॉइंट हाइपोथेसिस. नाउ ये जरूरी नहीं है कि आपका इंडिविजुअली जो है अभी अगेन योर एनालिसिस वुड बी कि अगर मेरे इंडिविजुअली जो है एक β2 और एक β3 जो है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है तो जॉइंट जो होगा वो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट होगा. ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड. बट ऐसा केस भी आ सकता है कि मल्टीकोलिनियरिटी, स्पेशली मल्टीकोलिनियरिटी में यू विल सी. ठीक है, मल्टीकोलिनियरिटी का डिटेक्शन भी ऐसे ही होता है इनफैक्ट. ठीक है, I'm giving you a flow into that particular chapter as well. कि इंडिविजुअली जब मैं चेक करता हूं तो जो एज ऑफ क्लॉक है वो मेरा इनसिग्निफिकेंट आ जाता है. दैट मींस दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड. और फिर जब मैं बिडर्स देखता हूं तो बिडर्स भी मेरा इनसिग्निफिकेंट आ जाता है. बट जब मैं ओवरऑल चेक करता हूं, ठीक है, जब ओवरऑल R स्क्वायर चेक करता हूं तो मेरा बड़ा हाई आ रहा है. दैट मींस ये दोनों इंटरेक्ट करके एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. तो इट विल बी समथिंग लाइक जो हमने वेन डायग्राम बनाया, क्या बनाया था, या दिस इज द प्राइस ऑफ द क्लॉक, ये हमारा क्या कहते हैं एज का है, ये हमारा क्या कहते हैं उसका है, ये एज का है, एज ऑफ द क्लॉक, और ये नंबर ऑफ बिडर्स. तो इंडिविजुअली ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बट टुगेदर मिलके ये दोनों बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. ठीक है, तो ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ डिटेक्शन ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी. जब आपके इंडिविजुअल टी स्टेटिस्टिक जो आएंगे वेरिएबल के वो इनसिग्निफिकेंट आएंगे, और बट ओवरऑल जो सिग्निफिकेंस होगा वो ज्यादा होगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज चेक फॉर जॉइंट हाइपोथेसिस एज वेल. नाउ जॉइंट हाइपोथेसिस क्या होता है? इंडिविजुअल तो आपको पता है कि B2 इज इक्वल टू 0 डाल दिया, B3 इज इक्वल टू 0 डाल दिया. बट जॉइंट हाइपोथेसिस इज कि जब आपने नल हाइपोथेसिस में लिया B2 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू 0, जब आप दोनों वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली 0 पुट करते हो तो आपको वो जॉइंट हाइपोथेसिस बन जाता है. ठीक है, एंड दैट एसेंशियली ट्रांसलेट्स इनटू, व्हाट डज दैट मीन? आप कह रहे हो कि ना तो x2 मैटर करता है ना x3 मैटर करता है, ये दोनों के दोनों मैटर नहीं करते. दैट अल्टीमेटली मींस कि आपका R स्क्वायर ही 0 है. कि दैट एसेंशियली मींस कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है, दैट नल हाइपोथेसिस मींस दैट x2 और x3 मिलके कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे in Y. So that essentially translates into your null hypothesis being R square is equal to 0. That is why this test is also called as test of overall significance. कि पूरे मॉडल का सिग्निफिकेंस चेक कर रहे हैं. रिमेंबर दिस टर्म, मॉडल सिग्निफिकेंस. जब आप वेरिएबल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हो तो आप इंडिविजुअली एक एक वेरिएबल्स को चेक करते हो, बट यहां पर जब आप बात कर रहे हो तो आप मल्टीपल सारे वेरिएबल्स को एक साथ लेके 0 पुट करके देख रहे हो कि मेरा पूरा मॉडल सिग्निफिकेंट है या नहीं. योर वर्क इज कि आप कैन बोथ ऑफ देम टुगेदर एक्सप्लेन द ऑक्शन प्राइस. ये आपका अल्टीमेट वो है, और इसको करने का तरीका क्या है? ठीक है, मैंने ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये मल्टीकोलिनियरिटी में ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन करा जाएगा अगेन दिस एस्पेक्ट. सो the analysis, how do we check? We check this through analysis of variance. आप analysis of variance करते हो और analysis ANOVA table बनाते हो, और उसके through you can check this. We already know that what is this? This is basically
TSS, this is your entire ESS and this is your R square. ठीक है, इन तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया. ठीक है, and remember now I am introducing another term called mean sum of squares. Now what is mean sum of squares? आपको sum of squares पता है. Sum of squares, what is the source? Due to regression, कि x2 और x3 की वजह से वेरिएशन कितना आ रहा है. दिस इज गोइंग टू गिव यू द सम ऑफ स्क्वायर. इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है? 2 है, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं. तो अगर आप सम ऑफ स्क्वायर्स को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास मीन सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाता है. सिमिलरली रेजिडुअल्स क्या है? रेजिडुअल्स आपका ये है समेशन EI स्क्वायर, एंड इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? n-3. n-3 क्यों है? क्योंकि एक B1 को एस्टिमेट करने के लिए गया, एक B2 को एस्टिमेट करने के लिए गया, एक B3 को एस्टिमेट करने के लिए गया. तो आपके पास जो MSS है वो इज दैट इज समेशन EI या ET स्क्वायर अपॉन n-3. और ये आपका टोटल है. टोटल का n-1 क्यों है? क्योंकि इसको एस्टिमेट करने के लिए आपको सिर्फ एक y बार ही चाहिए. ठीक है, तो इसको आप सम भी करोगे तो भी आपका ठीक आ जाएगा. ये ऐड कर, इनको ऐड करो तो आपके पास सी दिस इज कमिंग आउट टू बी दिस एंटायर थिंग. नाउ अब इसको हम चेक कैसे करते हैं? इसको हम चेक करते हैं थ्रू एफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो कि MSS ऑफ ESS, तो F इज इक्वल टू, इसमें F की डेफिनेशन क्या है? ESS अपॉन DF which is also equal to MSS. ठीक है, MSS ऑफ ESS, क्योंकि if you see what is MSS of ESS, this ESS divided by degrees of freedom, तो आपका MSS of ESS आ जाएगा. या फिर mean sum of square of explain sum of square, and नीचे आपका ESS RSS upon DF. तो आप इसी फॉर्म में याद करो. that is a little easier to remember कि आपका F distribution क्या है इस केस के अंदर? F distribution is ESS upon its DF and RSS upon its DF. अल्टीमेटली जब हमने डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करी थी, तो हम डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, जब हमने F के बारे में बात करी तो हम बता रहे थे कि F डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजुअली यूज्ड और इज यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएंसेस. इफ यू रिमेंबर आवर लास्ट टू लास्ट क्लास, तो वेरिएंसेस को कंपेयर करना है. तो हम इसमें क्या वेरिएंस कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे मॉडल के अंदर सारे वेरिएबल मिलके कितना y में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. ठीक है, y वेरिएबल को आपको एक्सप्लेन करना है, y के अंदर चेंजेस एक्सप्लेन करने हैं. ठीक है, तो इसको y माइनस y बार को कितना एक्सप्लेन कर पा रहे हैं आपके वेरिएबल्स विच इज एक्सप्लेन्ड बाय x2 एंड x3, एंड कितना अनएक्सप्लेन्ड रह गया. अगर आपका एक्सप्लेन्ड ज्यादा है अनएक्सप्लेन्ड से, दैट मीन्स कि ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा. ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली ये चेक करना, आपको अल्टीमेटली देखना है कि आपकी ये वैल्यू जो है ये ज्यादा से ज्यादा हाई जाए. अगर ये जितना ज्यादा हाई जाएगी उतना आपकी प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके वेरिएबल्स मिलके एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. आपका न्यूमरेटर जितना बढ़ेगा, और अगर ये एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहे होंगे तो आपका न्यूमरेटर ही जीरो हो जाएगा. ठीक, और न्यूमरेटर जीरो होते के साथ ही दैट मीन्स कि आपके वेरिएबल्स जो है वो बिल्कुल एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहे हैं. ठीक है, सो that is how you do this in general. इसको अगर जैसे इस केस में हमारे तो 2 वेरिएबल्स थे, इन जनरल आप इसको क्या लिखोगे? इन जनरल यू विल राइट दिस एज F जो है इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी? ESS अपॉन K. ठीक है, K माइनस एक्चुअली K माइनस 1. ठीक है, K माइनस 1 क्यों? क्योंकि एक इंटरसेप्ट का टर्म है. इस केस में ये 2 था, क्यों? क्योंकि 3 वेरिएबल था, तो इंटरसेप्ट का टर्म हटाया, तो K माइनस 1 आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और अपॉन RSS के केस के अंदर आपका क्या हो जाएगा? RSS के केस में n माइनस K. जिस इस केस में 3 वेरिएबल्स थे, तो इस केस में K वेरिएबल. सो दिस इज हाउ यू डू इट. और दिस विल बी डिफाइंड फॉर न्यूमरेटर का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. इस F को वैल्यू कैसे चेक करोगे? न्यूमरेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है n K minus 1 एंड डिनोमिनेटर की है, तो यू विल राइट दिस एज F K minus 1 comma n minus K. this is how you will check. एंड अगर इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू आपकी क्रिटिकल F से ज्यादा आ रही है, कंप्यूटेड F की वैल्यू क्रिटिकल F से ज्यादा आ रही है, then you will say that I will reject my null hypothesis. Remember, this is the basic of hypothesis testing. So that is how you do it. But आपको एक्चुअली में ये भी करने की जरूरत नहीं होगी. I'll give you a shortcut for this as well. ठीक है, यही सारा
explanation यहाँ पर given है, और वो multicollinearity की problem that is explained है. Now what is the relationship between f and r square? Now ultimately you can see how you derive this. ठीक है, that is a thing that I'm leaving up to you. Please go through this, that how you derive this, but ultimately you can make sense of this. क्यों? क्योंकि आपका न्यूमरेटर क्या बता रहा है, कितना एक्सप्लेन कर पा रहे हो. ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो होती है वो r स्क्वायर देता है, और जो अनएक्सप्लेन्ड है वो 1 माइनस r स्क्वायर देता है. You can find this derivation in my class notes as well. ठीक है, कैसे है, और k माइनस 1 और n माइनस k. अगर आपका r स्क्वायर ही 0 हो जाएगा तो दैट मीन्स f 0 हो जाएगा. तो जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन, जितना ज्यादा आपका r स्क्वायर बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो. जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो, विच इज एसेंशियली मीन्स कि आपका f जो होगा वो डिफरेंट होगा 0 से, और उतना ज्यादा ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा. सो ऑल यू नीड टू डू इज, अगर आपके पास r स्क्वायर की वैल्यू है, और दिस इज वन ऑफ द न्यूमेरिकल्स दैट इज ऑफन आस्क्ड, रिमेंबर दिस. आपके पास कई न्यूमेरिकल का एक छोटा सा पार्ट आ जाएगा कि आपके पास r स्क्वायर दे रखा होगा, आपको बताना होगा टेस्ट फॉर ओवरऑल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ठीक है, ओवरऑल सिग्निफिकेंस बताओ. सो जस्ट पुट दिस r स्क्वायर, एंड आपको पता होना चाहिए कि आपका n कितना है. सिर्फ आपको n पता होना चाहिए, आपको k पता होना चाहिए, और आप ये पूरा एनालिसिस कर सकते हो. this will be k minus 1 and this will be for n minus k. ठीक है, और उसको टेबल में उसको कैलकुलेट कर दो, एंड कैलकुलेट जैसे आपको पता चला 118 तो आपको f टेबल में कहीं नहीं मिलेगी, तो दैट मींस उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा 0 के पास है. कमिंग टू टू वेरिएबल रिग्रेशन इन केस ऑफ स्पेसिफिकेशन बायस. नाउ व्हाट इज स्पेसिफिकेशन बायस? स्पेसिफिकेशन बायस का एक पूरा कंप्लीट चैप्टर भी है हमारे सिलेबस में, which is the last chapter, which basically means कि आपने कोई एक वेरिएबल था वो आपने या तो ठीक से डाला नहीं, या आपने वेरिएबल को इंक्लूड ही नहीं किया. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिग्रेशन लाइन ये है, एक रिग्रेशन लाइन ये है, और एक रिग्रेशन जो हमने पहले पढ़ी थी जिसमें दोनों एज प्लस बिडर्स थे. सो वी विल सी दैट अगर आप ये लेते हो या ये लेते हो तो आप एक रिग्रेशन बायस कर रहे हो, क्योंकि आपने दोनों वेरिएबल्स नहीं लिए, क्योंकि ये भी वेरिएबल आपका सिग्निफिकेंट आ रहा है, ये भी वेरिएबल सिग्निफिकेंट आ रहा है, दोनों वेरिएबल सिग्निफिकेंट आ रहे हैं. So why not include both of these variables into one regression line? ठीक है. So if you compare these two with the previous multiple regression, remember उसकी एक वैल्यू 12 के अराउंड थी. ये वैल्यू जो मल्टीपल रिग्रेशन में देखा था तो आपकी ये वैल्यू 12 थी, और ये वैल्यू शायद से 85 थी. और ये इंटरसेप्ट जो था वो इंटरसेप्ट भी बहुत डिफरेंट था. इंटरसेप्ट -1335 था कुछ. इंटरसेप्ट if you remember was -1335. If you see that स्लोप्स और इंटरसेप्ट दोनों बहुत डिफरेंट है. इंटरसेप्ट we have already discussed कि ज्यादा रेलेवेंट नहीं होता, एंड दोनों का रिमेंबर दोनों का r स्क्वायर बहुत डिफरेंट है. इसका r स्क्वायर इज 53 एंड उसका 15%. ठीक है. सो ये अगेन यहाँ पर जो डिस्कशन है वो ये है कि आपने जो एनालिसिस ये r स्क्वायर, ये जो आपका स्लोप्स जो है ये डिफरेंट क्यों आया, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने अल्टीमेटली जब आपने ये एनालिसिस कर रहे हो, जब आपने ये एनालिसिस किया तो आपने सिर्फ सिंपल प्राइस को रिग्रेस कर दिया एज पे. ठीक है, तो आपने ये पूरा निकाल लिया. दिस इज द ग्रॉस इफेक्ट. ठीक है, आपने जो दूसरे वेरिएबल्स थे आपने लिया नहीं, क्योंकि अगर आप एक और वेरिएबल लेते विच वाज बिडर्स, तो ये आपका नेट इफेक्ट जो एज का था ये आपका ये तो चला जाता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर बना रहे हैं. तो आपका नेट इफेक्ट जो था वो सिर्फ ये था, बट क्योंकि आपने सिर्फ एक वेरिएबल लिया तो आपके पास ग्रॉस इफेक्ट आ रहा है इसका. ठीक है. सो that is what is this, that this equation reflects the gross effect, that is the direct effect of age as well as indirect effect of bidders. तो ये indirect जो effect bidders का आ रहा है, remember ये देख रहे हो, ये वेन डायग्राम का इसका इम्पैक्ट भी आ रहा है, तो आपने वो भी ले लिया. तो जबकि आपके पास दो अलग अलग वेरिएबल्स होने चाहिए थे जो इंडिपेंडेंटली, जब आपने मल्टीपल वेरिएबल रिग्रेशन निकाला था तो आपने यू हैड नेट इफेक्ट ऑफ एज, और आपने उसमें से बिडर्स का सारा इंपैक्ट निकाल लिया था, क्योंकि बिडर्स एक अलग वेरिएबल है. सिमिलरली जब आपने बिडर्स का निकाला तो आपने एज का जो वेरिएबल है वो अलग से नेट कर लिया था. सो पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट और जो ओवरऑल और
अगर आप पार्शियल मल्टीपल वेरिएबल रिग्रेशन में जाओगे तो उसका जो कोएफिशिएंट्स होंगे और अगर आप इंडिविजुअली निकालोगे उसके कोएफिशिएंट्स होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे हमेशा, क्योंकि जो इंडिविजुअल रिग्रेशन कर रहे हो दोज आर ग्रॉस कोएफिशिएंट्स, उसके अंदर आपने कुछ नेट नहीं करा है, उसके अंदर कुछ आपने बाकी सारे इन्फ्लुएंसेस उसके अंदर मिक्स हो रहे हैं, whereas these are net effects. This is an extremely important concept. This is an extremely important concept for your examination point of view as well. Comparing and in general also, आप दो मॉडल को कैसे कंपेयर कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि मैं एक मॉडल के अंदर आर स्क्वायर बढ़ाने के लिए मैं वेरिएबल्स ऐड करता रहता हूं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रिमेंबर दैट सैट का जो एग्जांपल था कि आपने उसके अंदर मूड भी ले लिया, आपने उसके अंदर वेदर भी ले लिया, आपने उसके अंदर क्या कहते हैं अपनी अपनी और भी बिना बात के कुछ वेरिएबल्स ऐड कर दिए. आप वेरिएबल्स ऐड करते जाओगे तो आपका आर स्क्वायर बढ़ता रहेगा. ठीक है, तो कई बार ये एडवाइस लोग करते हैं कि आप बहुत सारे वेरिएबल्स ले लो, स्ट्रिंग थ्योरी टाइप की, सारे वेरिएबल जितने भी हैं सारे वेरिएबल्स ले लो. ठीक है, बट दैट इज नॉट एन एफिशिएंट एक्सरसाइज. तो एक मॉडल है जिसके अंदर 50 वेरिएबल है. ठीक है, उसका आर स्क्वायर काफी अच्छा आ गया, 90% के अराउंड आ गया. और एक वेरिएबल है, एक सपोज मैं दो मॉडल्स को कंपेयर करता हूं. ठीक है, मॉडल 1 एंड मॉडल 2. मॉडल 1 के अंदर 50 वेरिएबल्स हैं. ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशन ही 100 है. ठीक है, इसके अंदर 50 वेरिएबल्स हैं. ठीक है, और इसका आर स्क्वायर आ गया 90. और मॉडल 2 है, उसके अंदर 4 वेरिएबल हैं और इसका इंपैक्ट आया 80. ठीक है, सो यूजुअली लोग क्या कहेंगे, यार ये 90 बहुत अच्छा है, इसका 90% एक्सप्लेन कर पा रहा है. बट सी दिस, इसने सिर्फ 4 वेरिएबल लिया और वो 80% एक्सप्लेन कर पा रहा है. ठीक है, तो और ये दोनों मॉडल जो है वो कंपेरेबल भी नहीं है. ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो बहुत डिफरेंट है. इसके अंदर 96 वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसके अंदर सिर्फ 50 वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि दोनों की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो डिफरेंट है. तो इसीलिए टू कंपेयर मॉडल्स अक्रॉस डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स की, एक ने ज्यादा वेरिएबल लिए एक ने कम वेरिएबल लिए, हम एक नए उसके ऊपर आते हैं which is adjusted R square. So that is the statement, comparing R square values of two models with same dependent variables but differing number of explanatory variables is essentially like comparing apples to oranges. You cannot compare two different models which have different number of explanatory variables. So a good measure, और usually आप जब भी कोई टेस्ट करोगे तो ये स्टैटिस्टिक अपने आप ही दे दिया जाता है. एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर बेसिकली क्या होता है? एडजस्टेड आर स्क्वायर आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी उसके साथ एसोसिएट कर लेता है. सो एडजस्टेड आर स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन which is equal to 1 minus RSS residual sum of squares divided by its degrees of freedom and total sum of squares divided by its degrees of freedom. और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अगेन this is something which is mentioned in your appendix. Let's see that appendix part as well. R square क्या होता है? R square is equal to ESS explain sum of squares upon total sum of squares. ठीक है, and it can also be written as 1 minus RSS upon TSS. Similarly, अब आप जब आप adjusted R square को लिखते हैं तो आप उसको डिवाइड करते हो तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से. तो RSS रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं? n माइनस के. टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं? n माइनस 1. ठीक है, हमारे पास ये है, इसको हमने ये डिवीजन में हमने इसको रीऑर्गेनाइज करके इस फॉर्म में लिख दिया. एंड व्हाट वी हैव डन इज वी हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड दिस इन दिस. ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया एक दूसरे के अंदर. सो यू विल गेट दिस. हाँ, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर से लिखा. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डिफाइन. और जैसे जैसे आप k को इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप k को इंक्रीज करोगे तो आप देख रहे हो आपका डिनोमिनेटर जो है आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा. अगर आपका डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो दैट मींस आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा एज कंपेयर टू आर स्क्वायर. सो जितना ज्यादा आप वेरिएबल्स लोगे, k इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि आप ज्यादा वेरिएबल्स ले रहे हो. वेरिएबल्स ज्यादा ले रहे हो तो दैट मींस आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो हो रही है वो लूज हो रही है. ठीक है, and that is like a penalty which the adjusted R square takes into account. तो आप वो penalty उस चीज की लगा रहे हैं. ठीक है, so that is why adjusted R square will always be less than R square. ठीक है, the other thing is always remember unadjusted R square positive रहेगा but adjusted R square negative भी हो सकता है. Now this is often a question which is asked. Prove this.
Now I request you to go through this question, okay, and try to prove कि in what condition, you can note down in what condition adjusted R square can be negative. Next question is when to add, and the last question is when to add an explanatory variable. Now this question is very easy in the sense that आप कब ऐड करोगे, जब आपको पता चलेगा कि आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है वो इंप्रूव करना है. दैट मीन्स देखो एडजस्टेड आर स्क्वायर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कंसिडर करके चल रहा है ऑलरेडी. तो दैट मीन्स इवन आफ्टर कंसिडरिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अगर आपका एडजस्टेड एक वेरिएबल ऐड करने की वजह से एडजस्टेड आर स्क्वायर बढ़ जाता है तो आप उसको ऐड कर दोगे. Also we can also prove this, and वो कैसे प्रूव होगा, I'll intuitively tell you that अगर आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t, सपोज मैं एक नया वेरिएबल उसके अंदर ऐड करता हूँ कि आपका एक वेरिएबल था एज ऑफ द क्लॉक, एक वेरिएबल था नंबर ऑफ बिडर्स, एक आप तीसरा वेरिएबल उठा के ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो वो है जो क्लास आई है वो रिच क्लास है या कैसी कोई और क्लास है, कोई एक थर्ड वेरिएबल कोई भी उठा के देख लो. सो अगर उस पर्टिकुलर वेरिएबल का अगर आप टी स्टेटिस्टिक देखोगे, ठीक है, टी स्टेटिस्टिक कैसे आएगा, आप उसको पहले अज्यूम करके चलोगे 0, फिर उसके बाद अज्यूम करके जो आपके टी स्टेटिस्टिक की वैल्यू आएगी, इफ दैट इज ग्रेटर देन 1 then your adjusted R square will definitely improve. And this is actually linked to the fact कि t square actually is equal to f1 comma k. This is something that I had already mentioned in my classes, and this is again a theorem. आप मेरे नोट्स में जाओगे आपको ये थ्योरम प्रूफ भी मिल जाएगी कि ये थ्योरम प्रूफ कैसे हो रही है, ठीक है. तो अगर आप एक नया वेरिएबल ऐड करते हो तो एक नया वेरिएबल ऐड करने की वजह से जो उसका टी स्क्वायर है वो पॉजिटिव वो ज्यादा एफ को ज्यादा कैसे ऐड करेगा, देखो किसी भी चीज का स्क्वायर जो होगा अगर वो 1 से बड़ा है तो वो ज्यादा ऐड करेगा न्यूमरेटर में. और एफ क्या होता है, एक्सप्लेन्ड. एफ क्या होता है, एक्सप्लेन्ड अपॉन नॉट एक्सप्लेन्ड, ठीक है. अब हमें पता है कि अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल टी जो है वो 1 से ज्यादा है, अगर 1 से कम होगा तो क्या होगा, ये एफ इसका डिनोमिनेटर जो है, क्योंकि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू दिस, तो अगर 0.9 का अगर आप स्क्वायर लोगे तो वो एक्चुअली कम कर देगा उसे, ठीक है. बट अगर आप इवन आप इसको अगर आप 2 का लोगे तो वो 4 कर देगा. तो दैट मीन्स एनी टी विच इज ग्रेटर देन 1, एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 1, वो आपका एक्सप्लेनेटरी एफ के अगर फॉर्म में, इफ यू रिमेंबर हमारा वो क्या था, एफ क्या था, एफ था कि एक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स अपॉन अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स. तो एक्सप्लेनेशन में ज्यादा ऐड कर रहा है एज कंपेयर टू नॉन एक्सप्लेनेशन में, ठीक है. तो इसीलिए हम जब भी आपका उस जो नया वेरिएबल ऐड कर रहे हो उसका अगर इफ योर टी वैल्यू, इफ योर टी स्टेटिस्टिक ऑफ दैट वेरिएबल इज ग्रेटर देन 1, हम ये नहीं कह रहे कि वो सिग्निफिकेंट हो या नहीं है, बस अगर वो टी की वैल्यू अगर वो ग्रेटर देन 1 है, दैट विल डेफिनेटली ऐड टू एडजस्टेड आर स्क्वायर. उसकी वजह से एडजस्टेड आर स्क्वायर बढ़ जाएगा. Remember this is the formula that I was explaining. तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास ये 4 रिग्रेशन मॉडल है, एक रिग्रेशन मॉडल ये है, ये सेकंड रिग्रेशन मॉडल है, ये थर्ड रिग्रेशन मॉडल है, ये फोर्थ रिग्रेशन मॉडल है. तो देखो जैसे ही आपने ये नया वेरिएबल लिया, ठीक है, एज का टी स्टैटिस्टिक आया 5.8, इसका आप स्क्वायर करोगे तो समथिंग अराउंड ये आपका 6 का राउंड है, 6 का स्क्वायर 36 का राउंड होता है, ठीक है. देखो एफ सिमिलर है, स्क्वायर करके देखो क्या आपको, दैट मींस इस वेरिएबल को आपको ऐड डेफिनेटली करना चाहिए, ठीक है. सिमिलरली आपका एक आपने नया रिग्रेशन किया, उसके अंदर आपने एज हटा दिया, आपने सीधा बिडर्स देखा, बिडर्स आपने देखा कि इसका टी स्टैटिस्टिक ये है, उसका स्क्वायर किया 5. दैट मींस वो एक्सप्लेनेशन पार्ट में ज्यादा ऐड कर रहा है रादर देन अनएक्सप्लेन्ड पार्ट में, आपका ये आर स्क्वायर बढ़ जाएगा, ठीक है. तो दोनों वेरिएबल्स को आप इंक्लूड करके देखोगे तो ये, ठीक है. अगेन रिमेंबर ये जो है ये एक वे उसे इसी के साथ है, ठीक है, टी के साथ. सो these are how you actually add to it. और वेदर टू डिसाइड कि दोनों वेरिएबल्स लगाने हैं, डालने या नहीं डालने, तो वो आप सिंपल एफ टेस्ट से कर सकते हैं, ठीक है. दोनों B2 और B3 को 0 पुट करके. एंड लास्ट थिंग, restricted model and unrestricted model. This is the last thing that we are going to cover now.
व्हाट इज दिस रिस्ट्रिक्टेड मॉडल? जो हमने मॉडल 1 यूज किया, मॉडल 1 देखो क्या है, मॉडल 1 इज व्हेन आपने कोई भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल नहीं लिया, दैट मींस आपने क्या अज्यूम करके रखा है कि b2 इज इक्वल टू b3 इज इक्वल टू 0। जब आपने ये दो अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस डाल दी हैं, these are two different restrictions, b2 is equal to 0 and b3 is equal to 0, so this is called as restricted model। और अगर इस मॉडल में आपने सारे वेरिएबल्स लिए हैं, इसको बोलते हैं हम अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल। तो आपके पास एक r² आएगा रिस्ट्रिक्टेड मॉडल से। रिस्ट्रिक्टेड मॉडल कब है? जब आपने दोनों वेरिएबल्स को 0 ले लिया, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन डालिए, 2 रिस्ट्रिक्शन डालिए। एंड अनरिस्ट्रिक्टेड क्या है? जब आपने सारे वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है, और उससे जो रिग्रेशन आएगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन है। तो आप एक और f देखोगे और इस पे डिपेंड करेगा, अगेन इसके बेसिस पे भी आप चेक कर सकते हो कि आप नया वेरिएबल ऐड करोगे नहीं करोगे। ये क्या है? r² ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल माइनस r² ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मॉडल। देखो r² रिस्ट्रिक्टेड मॉडल का तो एनी केस कम ही होगा, इनफैक्ट 0 होगा, ठीक है, बट अभी हम ये भी देख सकते हैं कि सपोज हमें नए दो वेरिएबल ऐड करने नहीं करने, ऑलरेडी 2 वेरिएबल्स थे, 2 वेरिएबल और ऐड करने नहीं करने, तो उस केस में r² 0 नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कह रहे हो, न्यूमरेटर में आप देख रहे हो कि मैं जब कोई 2 या 3 या 4 नए वेरिएबल ऐड करता हूं अनरिस्ट्रिक्टेड r², दैट मींस कि मेरा r² कितना बढ़ रहा है एज कंपेयर टू जब मैंने वो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, ठीक है, जो मेरा रिस्ट्रिक्टेड r² था। क्या ये रिस्ट्रिक्शन हटा के मेरे r² में इंप्रूवमेंट क्या है? r² इंप्रूवमेंट, कितना मेरा r² बढ़ता है एज कंपेयर टू अगर मैं अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल में रहता हूं, तो मेरा अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल का ये जो है, ये आपका 1 माइनस r² कितना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, अनएक्सप्लेन्ड इन अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल। अगर सिग्निफिकेंटली ज्यादा आ रहा है, 2 नए वेरिएबल ऐड करके अगर आपका r² सिग्निफिकेंटली ज्यादा, न्यूमरेटर बहुत ज्यादा सा बढ़ रहा है, तो आप वो वेरिएबल्स आप अपने मॉडल में इंक्लूड करोगे, और दिस विल हैव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ m। here m is equal to 2 क्योंकि आपकी 2 रिस्ट्रिक्शन थी, n तो आपको पता ही है, एंड k जो है वो आपके नंबर ऑफ अपने जो अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल में जितने भी अपने वेरिएबल्स हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एज वेल आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास ये देखो 89% था, 0 2 और डिवाइड बाय दिस, आप जैसे ही करोगे आपका ये 117 आ गया f, which will give you a very low probability of rejection। So this is how you can ultimately decide whether to add a new variable or not। Please remember this as well because ये multiple times आगे use आएगा, ठीक है। So with this I would like to end this particular chapter as well। Please go through Doggerty as well as my class notes। They are very elaborate and everything is being explained there as well, ठीक है। So I thank you for this session and take care, bye bye।